हेलो डियर फ्रेंड्स। तो सामने हम लिखा हुआ है चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक मीन्स हम लोग क्लास 7th की साइंस के बारे में बात कर रहे हैं और दो चैप्टर हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से कंप्लीट किया है और पूरे हमारे उसमें आपके 10 वीडियोस में काम हम लोगों ने कर किया है। So I hope you have watched all videos, and if you have not done that thing, so certainly you will soon watch that videos so that we can prepare, we can avail this opportunity of forced holidays, you can say. So next chapter क्या है हमारा? फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 6 में कुछ ऐसा पढ़ा था, नेचुरल फाइबर्स है कि नहीं, नेचुरल सिंथेटिक कुछ नाम आया था, तो वहाँ भी फाइबर टू फैब्रिक था। और यहाँ फिर नेक्स्ट अगली क्लास यानी 6 के बाद 7th क्लास में आपको फिर से मिल गया फाइबर टू फैब्रिक। सो आपको याद होगा बहुत सारी चीज़। नेचुरल फाइबर्स में हम लोगों ने प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर पढ़े थे, ठीक है। साथ साथ में हम लोग सिंथेटिक फाइबर का भी नाम ले लिए थे, हालांकि वो सिलेबस में था नहीं, लेकिन फिर भी बात तो कर लिए थे। फिर भी हम नेचुरल फाइबर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वूल पढ़ा, सिल्क, प्लांट फाइबर्स कुछ पढ़े, जूट और फ्लेक्स, ओके, एंड सन हेम्प। दीज आर सम प्लांट्स, जूट, सन हेम्प, फ्लेक्स etc. are plant fibers. Cotton is very important plant fiber. And animal fibers are what? Wool and silk. So wool and silk are animal fibers. So wool is obtained from what? From sheep, goat, even camel, llama, alpaca, yak, etc. So many goats are there. We know about sheep only. Sheep are very rich source of, good source of wool, but some fine quality, good quality wool is obtained from goats also. So pashmina wool, you might have heard about this pashmina. So pashmina shawls are manufactured, they are made in Kashmir, Jammu and Kashmir, and these pashmina goats are reared in Kashmir and they are under fur, okay. So under fur means a fine fur below this main fur which is seen out from outside. The under fur is very soft and very precious, okay. So this goat is the source of pashmina wool. And in South African countries, llama and alpaca, even camel are source of wool. And in China, Tibet region, this yak is very good source of wool. So yak has also a long fur. So these are animals. Even silk is obtained in different way, but it is again animal fiber, because silk moth weaves the silk, okay. Now let us see the fibers, any wool. So especially wool is animal fiber. It is obtained from goat, camel, sheep, and Angora goat, llama, alpaca, yak. These are some animals. So this is very common. We have studied this thing. And cold and mountainous regions are very favorable for rearing of these animals, wool yielding animals, okay. These days very acrylic is very famous. This is cheaper than natural wool. So to make sweaters, shawls, acrylic is very popular. Blankets are made. So there are many sources, and synthetic fibers are now in play, and which are
are replacing natural fibers, costly natural fibers. So for poor and lower middle income group people, these synthetic fibers are better. Okay. So फाइबर क्या होते हैं? ओके, फाइबर मटेरियल, फाइबर तो मटेरियल का नाम, जैसे आप ग्लास कहेंगे, पीतल कहेंगे, तांबा कहेंगे तो मटेरियल है, स्टोन कहेंगे, सीमेंट कहेंगे तो मटेरियल है। वैसे फाइबर भी क्या है? मटेरियल है। कॉटन एक तरह का फाइबर है, तो कॉटन जो इतना कॉटन है वो फाइबर, कहते हैं फाइबरस मटेरियल है, तो फाइबर है वो जिस तरह का बना हुआ है, कॉटन है, सन है कि नहीं। हम बाल को भी फाइबर ही बोलते हैं, फाइबर है, तो इतना अगर बाल है तो भी कहेंगे फाइबर है, इतना नायलॉन है तो फाइबर है। तो फाइबर मीन्स ऐसा मटेरियल जो बहुत रेसे से बना हो, उसमें स्ट्रैंड्स होते हैं, तो जो एक रेसा महीन सा खींचते हैं उसमें से ना, फाइबर में से, वो तो यार्न बना दिया गया है, थ्रेड बना दिया गया, उसकी बात हम नहीं करें। फाइबर से कॉटन का इतना लंप, सपोज यू हैव अ लंप ऑफ you have a lump of cotton, then you can draw finely a single strand, it comes out, it is visible, but you have to see carefully, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तभी उसमें स्ट्रैंड ऐसे निकलेगा ना, तो वो कहेंगे कि ये स्ट्रैंड निकल रहा है। तो फाइबर क्या है? फाइबर मटेरियल जो है बहुत सारे स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, तो वो फाइबर है। उन्हीं स्ट्रैंड्स को लेकर के क्या बनाते हैं हम? यार्न बनाते हैं। तो फाइबर मटेरियल क्या है? इसमें जो फाइबरस मटेरियल हैं क्या है? बहुत सारे हैं, जैसे कॉटन है, वूल है ना, जूट है, ठीक। तो ये सब है। आप कोकोनट फाइबर भी कहते हैं, इनका भी यूज होता है बहुत सारा। तो फाइबर, जिसमें फाइबर मटेरियल ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रैंड होते हैं, महीन धागे, बहुत पतले रेसे जैसे होते हैं, उनको खींच के ऐसे निकालिए तो एक रेसे निकलते हैं, तो ये फाइबर है। तो इसमें से हम लोग क्या बोल रहे थे कि नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। सो फाइबर्स and they are what? They are of two classes: natural fibers and synthetic fibers. Synthetic means man made, जिनको लैब में बनाया गया या फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स में भी क्या है? ये क्या है? प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। सो प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स एंड हियर एनिमल फाइबर्स। And synthetic fibers, they are also are of many types. Okay, they are rayon, nylon, acrylic, so polyester. So these are fibers: rayon, nylon, acrylic, polyester. These are artificial fibers और synthetic fibers, जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, वो किसी प्लांट या एनिमल से नहीं पाए जाते। और ये क्या है? नेचुरल फाइबर्स में क्या है? प्लांट और क्या है? एनिमल फाइबर्स हैं। और एनिमल फाइबर्स में देखिए क्या है? ये वूल और सिल्क ना, वूल एंड सिल्क। और प्लांट फाइबर बहुत सारा है, कॉटन है ना, कोकोनट, जूट फ्लेक्स, सन हेम्प,
सो ये बहुत सारे हम लोगों ने ये फाइबर्स हम लोगों ने देखे थे या बात किए थे। तो इन्हीं में से क्या है, जो पहली चीज़ है, वैसे बहुत सिंपल सी बात है, पढ़े हुए है ही हैं आप, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ये डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए आप। हम नेचुरल फाइबर्स में ही अभी किसकी बात कर रहे थे, एनिमल फाइबर की, वूल की। तो वूल के जो सोर्स हैं वो शीप, ठीक है, तो वूल के बारे में बात करेंगे हम। और ये ठीक, तो ये फाइबर्स देख लीजिए आप, बार बार वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या बताया गया था। सो फाइबर्स में यही ऐसे है। और हम वूल की जब बात करते हैं तो वूल कहाँ से है, देख ही रहे हैं, ये कौन सा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। नेचुरल में किसका है, कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। और एनिमल में कौन कौन से एनिमल से मिलता है, तो अभी बताया कि ये क्या है, शीप, गोट, कैमल, लामा, अल्पाका, याक, है ना, ऐसे ये फाइबर्स मिलते हैं। अब ऐसे तो बहुत कॉस्टली जो फाइबर्स, उनमें कुछ छोटे एनिमल के भी ले लेते हैं, हो जाता है, वो तो रैबिट का भी यूज़ कर लेते हैं, तो अलग बात है। तो ये वूल, तो वूल के क्या हैं सोर्सेस, सोर्सेस क्या है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, कैमल, गोट, ओके, लामा, अल्पाका, yak, okay, etc. So these are sources. So it is natural fiber. Wool is what? It is natural fiber, and you can say this is animal fiber. Animal fiber, okay. और फाइबर क्या होता है, जो रेसे हैं, बाल हैं, वो जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि आप ये नेचुरल फाइबर्स के बारे में कर रहे हैं कि ये बेसिकली ये क्या हैं, बेसिकली दीज आर प्रोटीन्स, बेसिकली दीज आर प्रोटीन्स, ओके। सो fur or hair, they are made of proteins, and the natural material, the raw, in the raw form, this wool is known as fleece. जो स्किन पर लगा होता है ना, जो शीप या गोट के स्किन पर जो लगा होता है, तो कहते हैं कि इसे क्या है, फ्लीस, फ्लीस, हम फ्लीस निकालते हैं, है ना, उसी से हम जो उसके रेसे हैं निकाल के कहते हैं वूल है ये। तो फ्लीस, जब वो शीप का आउटर पार्ट जो है, जहाँ पर वो रेशे होते हैं, हमको हम फ्लीज कहते हैं। सो फ्लीज नाम आता है, ठीक है। सो फ्लीज, फ्लीज मीन्स व्हाट, हेयर या फर, ठीक है। जैसे हम अपने सर पे क्या कहेंगे, बाल कहेंगे, नहीं बाल है, तो वैसे ही हमारे सर पर है तो कुछ और है, उसके बाद फिर अलग है तो फिर वो भी कहेंगे बाल है। लेकिन एक तो उस समय क्या हुआ, एक फाइबर हो गया, एक मटेरियल बन गया। लेकिन हमारे लिए जब तक सर पर है तब तक क्या है, ठीक है, एक अलग उसकी डिफिनीशन है। तो वैसे ही जब तक ये शिप के ऊपर है, गोट के ऊपर लगा हुआ है, उस समय उसको फ्लीस बोलते हैं, कि उसको फ्लीस हम उतारते हैं, लेते हैं गोट को, ठीक है। तो इस तरह से जो ये मटेरियल हैं, ओके। सो दिस चैप्टर इंक्लूड्स दिस थिंग ओनली, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, और नेचुरल फाइबर्स, फिर कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स दोनों हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में अभी ये प्रोजेक्टर पर थोड़ा सा चैप्टर हम जल्दी जल्दी देख लेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है, इसमें क्या क्या कंटेंट है जिसको हमको पढ़ने हैं। तो उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग हम प्लान किए करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, so see children,
This is chapter fiber to fabric. Nearly all things are given here. The fleece. Okay. So in 6th class you have seen these things, and woolen yarn. So by using fiber we make yarns, we spin on machines, and then this yarn is woven in fabric, है ना, उसको बुनाई करते हैं तो फैब्रिक बनते हैं। तो अभी फाइबर्स के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, अभी एनिमल फाइबर्स हैं, वूल एंड सिल्क। ऊल के बारे में इन्होंने दे रखा है, और ये बहुत सारी चीज़ें देखिए क्या दिया ना, अंगोरा गोट और क्या क्या नाम दे रखा है। तो अंगोरा गोट कहाँ होते हैं, कश्मीर वगैरह में ये पाले जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ठीक, तो ये कह रहे हैं द हेयर स्किन ऑफ शीप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है, इट्स फ्लीस, ओके, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो अंडर हेयर जो इसकी बात कर रहे थे, ये वाला जो ये हेयर बहुत सॉफ्ट और बहुत अंदर वाले स्किन के क्लोज पे होता है, और जो बाहर जो बाल होते हैं बड़े बड़े होते हैं वो, तो ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये और इनमें क्या होता है, कह रहा है द फाइन हेयर प्रोवाइड्स फाइबर फॉर मेकिंग वूल, ओके। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ऐसे शीप्स होती हैं जिनके बस महीन ही बाल होते हैं, ठीक है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है ना। तो उनमें जो बड़े बड़े बालों के बीच में अंदर में बहुत सॉफ्ट वूल होता है, इसको हम क्या करते हैं, उसको हम अच्छे ब्रीड के, अच्छी नस्ल के शीप्स लेते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, ताकि अच्छे ब्रीड के शीप्स जन्में जिनमें अच्छे हेयर हो, सॉफ्ट हेयर हो, सॉफ्ट क्या हो, फ्लीस हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ऐसी चीज़ को सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, है कि नहीं। प्लांट्स में भी ऐसा करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कि अच्छे किस्म के, अच्छे नस्ल के पौधे ही उससे क्या किया जाए, पॉलिनेशन कराया जाए, जिससे कि नए बढ़िया प्लांट हों। ऐसे प्लांट का कलम लगाया जाए, है ना। उसको जो ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो अच्छे प्लांट, अच्छी नस्ल वाले प्लांट से करते हैं, ताकि अगला जो प्लांट बने वो अच्छा बने। इस तरह एनिमल में भी क्या है कि जो भी ब्रीडिंग कराई जाती है वो क्या है, आपका पर्पज़ है अच्छे वूल प्राप्त करना है, अच्छे वूल ऑब्टेन करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये ठीक से सेलेक्टिव ब्रीडिंग इसीलिए कहते हैं कि उनके शीप के पेरेंट्स ऐसे चुने जाते हैं ताकि अच्छी किस्म के वूल मिले, ठीक है। और वूल की प्रॉपर्टीज़ क्या करें कि डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट और हेयर। तो ठंडे इलाके में करें ना, वो ठंडे और माउंटेनस रीजन में पाए जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो वूल है वो ठंड से बचाता है, इसमें एयर ट्रैप हो जाती है अंदर बालों के बीच में, जिससे ठंड नहीं लगती है। और ये खुद ही एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है एयर का। देखिए एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड एयर का बालों के बीच एयर ट्रैप हो जाएगी तो क्या होगा, ठंडा नहीं लगेगा और एनिमल ठंडे इलाके में रह सकता है आराम से। तो ये हैं कुछ ऐसे ही। तो कहना एनिमल्स दैट ईल्ड वूल, अभी बात हो ही रही थी कि वूल की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी, और एनिमल्स हो रहे हैं, कौन कौन से एनिमल होते हैं जो उनमें वूल मिलता है हमको। तो देखिए क्या है, शीप वूल है, याक वूल है, ये कॉमन है तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, से कश्मीर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो कश्मीर से अंगोरा गोट, उससे अंगोरा वूल मिलता है। और इन्हीं में से पश्मीना शाल जो अंडर फर है कश्मीरी गोट का, है ना। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, बोल रहे हैं ना, शीप और याक के अलावा गोट हेयर से भी हमको वूल मिलता है। तो ये क्या, यही कह रहे हैं ना कि द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। तो कश्मीरी गोट्स बहुत सारी होती हैं, उनमें जो अंडर फर, बड़े बड़े बालों के बीच में छोटे छोटे फर होते हैं। इट इज़ वोवेन टू फाइन शॉल्स, ये बहुत अच्छी किस्म के शॉल बनते हैं, इसे महंगे शॉल्स बनते हैं।
पश्मीना शॉल, और इनका लाख लाख में भी दाम होता है। ठीक है। द फर और हेयर ऑन द बॉडी कैमल ऑल्सो यूज टू यूल, तो वूल की तरह यूज़ होते हैं। और अफ्रीका देखिए, साउथ अफ्रीका में क्या है, ये लामा और अल्पाका, ये भी इनका भी यूज होता है वूल यील्डिंग के लिए। ठीक है ना। तो इन्होंने एक्टिविटी दे रखा है, कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। तो एक्टिविटी है, ये ज़रूर पिक्चर कलेक्ट कर लीजिएगा। इसको अपने नोटबुक में क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। और फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेजेस। आपकी लैंग्वेज में शीप को हम भेड़ बोलते हैं, गोट को बकरी बोलते हैं, कैमल को ऊँट बोलते हैं, याक को तो याक ही बोलते हैं अभी। ठीक है ना। तो फिर भी उनको वर्ड्स फॉर शीप इन योर लोकल लैंग्वेजेस करना है, अपने लोकल लैंग्वेज में बताना है। तो देखिए क्या वो लामा ऐसा है, अल्पाका ये है, और भी चीज़ें खोजिएगा किसके किसके फर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। क्या बनाने के लिए, ऊल पाने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आप इनसे ऊल और किससे ऊल लेते हैं और किससे और फर लेते हैं और चीज़ें लेते हैं। तो कल हम और अगले वीडियो में और हम बात करेंगे क्या करें, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। तो करें जो वूल पाने के लिए क्या करते हैं, आप निश्चित ही शीप या गोट को रियर करेंगे, पालन करेंगे उनका। सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, देख रहे हैं ना यहाँ पर, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स। तो वूल इसमें स्टेप्स होते हैं, और उसके फ्लीस कैसे कट करते हैं, फिर उसके बाद उनको साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से जो बर्स वगैरह है जो गोल गोल हो गए हैं सब लपेट के वो उनको छांटते हैं, और इसके बाद कलर भी करते हैं, सुखाते हैं, और फिर यार्न बनाते हैं। उसके बाद वीविंग होती है, फिर है ना, वूल या स्वेटर शॉल जो भी बनाए जाते हैं वो भी, या कपड़े बनाए जाते हैं वो भी, सब बनते हैं उससे। तो देखिए रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप कहाँ है, ये बहुत जगहों पर, ठंडी जगहों पर होगा। कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। वी कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हॉर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो हम लोग के इलाके में देखें ना, भेड़ चराने वाले बहुत सारे घूमते रहते हैं लेके अपनी भेड़ों को। जितने वूल यील्डिंग है सब हर्बीवोरस हैं। ठीक है ना, सभी घास पत्ते खा के रहते हैं। तो करें और भी इनको घास तो खाते ही हैं जाके, इनको घर पे भी और चारा भूसा जो भी है, ऑयल केक सीड है ना, पूछ सकते हैं कि और क्या क्या खाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियरर्स है ना, जो शीप रियरर्स हैं, जो भेड़ पालन करने वाले हैं, क्या क्या खिलाते हैं उनको, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स है ना। ऑयल केक्स आप हो सकता है ना देखे हों, जब मस्टर्ड या लिंसीड वगैरह जो भी हैं, इन सब में से ऑयल निकाला जाता है। सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, तो उसमें जो ऑयल के बाद जो बाकी मटेरियल बचता है वो एकदम हार्ड मशीन से निकलता है, उनको हम ऑयल केक कहते हैं। तो जो मस्टर्ड या लिंसीड के ऑयल केक्स हैं या ग्राउंड नट के हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनिमल अच्छी तरह खाते हैं, और काफ़ी उनके लिए न्यूट्रिशियस भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो उनको केवल जो घास है या केवल ग्रेजिंग पर ही डिपेंड नहीं करते, और ये इंडोर न्यूट्रिशन भी उनका चलता है, घर ला करके उनको और चीज़ें भी खिलाते हैं। ठीक है ना। और इनका एक फ़ायदा ये है कि आप ये जो हमारे आसपास जो देखते होंगे, जो शेपर्ड्स जो लेके भेड़ों को जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो खेतों में रात को ये उनको खेतों में बैठाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें फार्मर्स का भी फ़ायदा होता है कि ये जो शीप हैं या गोट्स हैं, या इवन काउस के भी हर्ड होते हैं, लेकिन हम उससे काउ से मतलब नहीं है यहाँ पर। तो शीप या गोट के जो हर्ड हैं, ये खेतों में बैठते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, बीट करते हैं रात भर। वहाँ पर क्या करते हैं, ये अपने वेस्ट वहाँ पर छोड़ते हैं, बीट करते हैं। तो क्या होता है, ये बहुत ही फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाती है इससे।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत डिपेंडेंस अच्छी है। वहाँ से वो कुछ खिलाने पिलाने के लिए पैसे भी लेते हैं भेड़ों को, और साथ में उनको रहने की भी एक जगह मिल जाती है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है फार्मर्स को होता है कि सॉइल क्या हो जाती है, ये फर्टाइल हो जाती है। तो बहुत ही एक इंटरलिंक्ड एक क्या है ये पैटर्न है भेड़ों को रखने का या रियरिंग और उनका केयरिंग का। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद क्या करें, करें कि शीप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ओके, सो बहुत जो अच्छी किस्म के वूल वाले हैं वो तो कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, ये सब जगहों में पाए जाते हैं जहाँ ठंडे हैं, पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, और जगहों पर हैं, अब तो कर्नाटक में भी हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह होते हैं। तो ये सब होते हैं, उनका वूल मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये टेबल आप देख लीजिएगा, कह रहे हैं कि नेम ऑफ ब्रीड, ये शीप का नाम है कि ये कौन कौन से ब्रीड हैं। तो कौन से हैं ये, नेम ऑफ ब्रीड, शीप का नाम है ये, है ना। देखिए क्या है, ब्रीड्स ऑफ शीप, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। लोही कहाँ है, गुड क्वालिटी वूल कहाँ मिलता है, राजस्थान पंजाब में भी ये होते हैं। रामपुर बुशैर, ब्राउन फ्लीज वाले होते हैं, ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इधर देखते हैं ना आप लोग, थोड़ी काली भूरी ये जो शीप्स घूमती हैं वो उनका है ये। नाली कारपेट वूल है, यहाँ मिलता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, तो राजस्थान और पंजाब में खूब शीप होते हैं। ठीक, बकरवाल, ये तो कश्मीर वाले हैं। ठीक, बकरवाल शीप वाले ये कश्मीर वाले हैं। ठीक, मारवाड़ी, ये तो गुजरात में, मारवाड़ क्या होता है, राजस्थान और गुजरात का इलाका है मारवाड़। ठीक है ना, जैसे आप बुंदेलखंड वगैरह ये सब सुनते हैं ना, तो ये मारवाड़ क्या है, ये गुजरात का इलाका है। और ये क्या है, पटनवाड़ी, ये होजरी, ये भी गुजरात, ये होजरी कपड़े के लिए है। पटनवाड़ी शीप क्या है, जो आपके देखते हैं ना, होजरी बहुत सारे महीन कपड़े और महीन ये स्वेटर वाले भी इनका होता है। ठीक है ना, इनका यूज़ होता है। और कोर्स वूल तो है ही है। ठीक, तो ये हैं, इसमें और भी है। तो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। ओके, तो हम समझते हैं बेटर होगा कि इसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम वूल की प्रोसेसिंग करते हैं और उसको फाइनल रूप में लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारी आज शुरुआत हो गई इस चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की। आपसे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी अब बाकी चीज़ों को कंप्लीट करिए। और सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज तक की बात हो गई है, तो वहाँ तक कंप्लीट करिएगा। और ठीक, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको जब भी यहाँ से दिया जाए या डाला जाए तुरंत आपको मिल जाए, उसकी सूचना आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत केयर करिए अपना, खूब पढ़िए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।